Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our new chapter. Yes, we are meeting for chapter number 2 named Multiplication, and this is our part 1. Right? So children, before starting this chapter, I would like to know that you all know tables, right? We have already learned tables up till 12. But in this chapter, you are having tables up to 10. So you already know tables. But how tables are formed, what are different ways of multiplication, those things we are going to learn in this chapter. Right? And in today's session, we are going to learn addition and multiplication statement, which you already know. I'll do it on the board so you will get a recap that these things we have already done in grade 1. Right? And the second thing is how multiplication takes place with the help of skip counting. These two things we are going to learn in this session. Right? Now starting with an example for first part, that is addition and multiplication statement. For that I have drawn 3 plates. You can see, and in 3 plates there are apples drawn inside it. Right? Now question is, how many apples are there in each plate? If you remember last year I used to give you a worksheet of these kind. It's the same type of question. Chalo. So first what we will do, how many apples are there in each plate? How many apple in this plate? 3. In this plate? 3. In this plate? 3. So what we did? 3 plus 3 plus 3 is equals to 9. Right? Or in the other form I can say that 3 and in this also 3, in this also 3. So what is that 3? Total plates है, उसके अंदर कितने objects हैं? So here apple are objects. तो हर एक में कितने objects हैं? 3. So यहाँ पे क्या है? Object is equals to 3. Am I right? Object मतलब जो चीज अंदर होती है वो, जो प्लेट के अंदर क्या है? एप्पल हर एक में सेम है. देखिए यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3. So object is 3. So the first answer is how many apples are there in each plate? 3 apples. Okay. Second question is how many plates are there? Now how many plates? 1 plate, 2 plate, 3 plate. So ये क्या था? 1, 2 and 3 क्या था? Group. So what is group? Group is equals to 3. तो अब हमको क्या मिला? ग्रुप मिला 3, ऑब्जेक्ट मिला 3. तो अब जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ग्रुप मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट. सो ग्रुप इज 3 मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट इज 3 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट 9. तो ये जो हमको मिला ये है मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट. 3 times 3. यू ऑलरेडी नो द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. इसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं. और ये हम कैसे बोल सकते हैं? 3 times 3. 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया या 3 को 3 बार ऐड किया तो क्या मिला? 9. सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट. और इसी स्टेटमेंट को एडिशन स्टेटमेंट में हम कैसे बता सकते हैं? तो ये जो हमने किया ऐड करके, दिस इज नोन एज एडिशन स्टेटमेंट. जब आप 3 ऑब्जेक्ट्स प्लस 3 ऑब्जेक्ट्स प्लस 3 ऑब्जेक्ट्स का एडिशन बार बार करते हो और जो आंसर मिलता है उसको एडिशन स्टेटमेंट कहते हैं. और मल्टीप्लीकेशन के साथ जो ग्रुप और ऑब्जेक्ट आप मल्टीप्लाई करते हो उसको मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट कहते हैं. इन दोनों चीज का मीनिंग सेम ही हुआ. ये एडिशन स्टेटमेंट कहो या मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट कहो, दोनों सेम हुई. एग्जाम में ये पूछ सकती हूं मैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 शो इट इन एडिशन फॉर्म. तो आप ऐसे करोगे. या मैं एग्जाम में ये पूछ सकती हूँ 3 plus 3 plus 3 इज इक्वल्स टू 9. शो मी दिस इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. तो आप ये लिखोगे. वेरी सिंपल. जब भी आपके पास सपोज 2 plus 2 plus 2 इज इक्वल्स टू डैश है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप. तो ग्रुप कितने हैं? 3. तो मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे? 3 ग्रुप मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप?
2 ऑब्जेक्ट्स हियर, 2 ऑब्जेक्ट्स हियर, 2 ऑब्जेक्ट्स हियर, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे क्या था 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, राइट। तो दोनों सेम आया। दिस इज मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट एंड दिस विल बी एडिशन स्टेटमेंट। सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट मतलब ग्रुप मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट, और एडिशन स्टेटमेंट मतलब हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप, वो आप ऐड करोगे वो आपका एडिशन स्टेटमेंट होगा, राइट। सो अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या था, हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, तो आंसर क्या आएगा 3 प्लेट्स। फिर दूसरा ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ईच प्लेट, कितने हैं 3 3 3, सो हम लोग क्या लिखेंगे 3 एप्पल्स इन ईच प्लेट। रिमेंबर इन ईच लिखना जरूरी है क्योंकि एक प्लेट में कितने एप्पल्स है वो पूछ रहे हैं, ओके। सो 3 एप्पल्स इन ईच प्लेट। एंड फाइनल इज हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल, तो ये हमको जो फाइनल आंसर क्या मिला 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 एप्पल्स इन ऑल, तो क्या लिखेंगे 9 एप्पल्स इन ऑल। Got it? This is the way how addition statement and how multiplication statement is formed, right? अब इसी के बेसिस पर आपको पेज नंबर 118 पर एक बॉक्स में यही चीजें दी गई है। किसी में मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट दिया गया है तो आपको उसका एडिशन स्टेटमेंट लिखना है, किसी में एडिशन स्टेटमेंट दिया गया है तो आपको उसका मल्टीप्लीकेशन लिखना है, राइट। सो लेट मी इरेज दिस, और मैं आपके लिए 1-2 सम्स बोर्ड पर वो करूंगी, रेस्ट यू विल डू इट योरसेल्फ। पेज नंबर 118, एवरीबडी प्लीज ओपन इन योर टेक्स्ट बुक एंड राइट टुडेज डेट इन दैट। पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फर्स्ट ऑलरेडी दिया गया है। नाउ सेकेंड इज 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू डैश। अब इसमें क्या है, ग्रुप क्या है 1 and 1 2, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट क्या होगा, पहले ग्रुप आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक में जितनी चीज है, कितने हैं ऑब्जेक्ट 5, यहां पर भी 5, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट 5। रिमेंबर ऑब्जेक्ट की जगह पे आप 5 और 5 10 नहीं लिख सकते। ऑब्जेक्ट मतलब हर एक ग्रुप के अंदर वो सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो तो ही वो ऑब्जेक्ट बनता है और तो ही एडिशन स्टेटमेंट या मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट बनेगा। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो वो मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट नहीं बन सकता, ना ही वो एडिशन स्टेटमेंट बन सकता है। ये रूल है, सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए तो ही वो स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। सो ये क्या आया, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ इज इक्वल्स टू 10। आप दोनों तरीके से चेक करो, 5 प्लस 5 10 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज ऑल्सो 10, तो आप सेम ऐसे भी अपने बुक में लिखोगे, राइट। नाउ थर्ड इज हाउ मेनी टाइम्स 1 इज एडेड, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 1 एड किया गया है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज इक्वल्स टू डैश, ठीक है। अब हमने ये कैलकुलेट किया एवरी टाइम, देखो ऑब्जेक्ट में क्या है 1 1 1, राइट। तो ग्रुप मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा 1, और ग्रुप कितने हुए टोटल करें 1 2 3 4 5 6 7, सो व्हाट इज द आंसर, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7। आप इक्वल्स टू 7 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है। और आप यही चीज ऐड करके भी देख लो, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 एंड प्लस 1 7, so you get the answer as 7, right? Now the fourth one is 9 plus 9 plus 9, 9 plus 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू डैश। अब ये एडिशन स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट्स क्या है हर जगह पे 9, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे 9 लिख रही हूं, और ग्रुप कितने हैं 1 2 3, सो क्या आएगा आंसर 3 मल्टीप्लाई बाई 9 और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू
27। आप इसका एडिशन करें, 9 + 9 is 18, 18 + 9 is 27. You will get the same answer, right? So these are all addition statement और आपने उसमें से multiplication statement बनाया। अब मैं एक करूंगी मल्टीप्लीकेशन वाला, उसमें से आपको एडिशन वाला करना है, ठीक है? सो विच शुड आई टेक? ओके, बुक में ऐसा है ही नहीं एक भी, तो मैं ऐसे ही एक रैंडमली 6th नंबर का है, 6, 5 आई एम नॉट डूइंग, 6 आई एम डूइंग। 6th में लिखा है 7 = डैश। तो इसका मतलब क्या होगा? एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट? सॉरी, एक ही ग्रुप है, तो ग्रुप में क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें? 7। सो व्हाट विल बी द आंसर? 7 आया। 7 = 1 मल्टीप्लाई बाय 7 = 7, राइट? सो दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व एडिशन स्टेटमेंट इनटू मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट। ओके, सो रेस्ट इसमें 10 है, उसमें से रेस्ट आपको करने, मैंने बोर्ड पर 4 सम्स किए हैं, रेस्ट यू विल डू इट एज होमवर्क, राइट? नाउ पेज नंबर 119, उसमें आप देखो पिंक बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन ऑल? नाउ देयर आर 2 बॉक्सेस, ओके, 1 2 3 4 and 5 ऑरेंजेस में है, 1 2 3 4 and 5 ऑरेंजेस इसमें है। नाउ ऑप्शंस आर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, second option is 2 multiplied by 6 and the third option is 5 multiplied by 3। अब आपको फाइंड करना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो सबसे पहले तो आप ग्रुप देखो कितने हैं, 1 ग्रुप एंड 1 ग्रुप, 2 ग्रुप्स। तो सबसे पहले क्या आएगा? ग्रुप में 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट? 5. So what will be the right answer? 2 multiplied by 5. Which is the right answer in this? A. 2 multiplied by 5 is your answer. So please take 2 multiplied by 5. Right? So children, this is addition and multiplication statement. I hope you all are clear because यही चीज last year भी हमने already की है. Right? Now next topic is exercise 2.1। हम लोग अभी exercise 2.1 solve करेंगे। So please take out exercise 2.1 on page number 119। Question number 1, exercise 2.1, right? अब इसमें आपको क्या बोला गया है? Look at the addition statement given below and draw the correct number of object in the boxes। आपके पास बॉक्सेस तो ऑलरेडी दे दिए गए हैं, आपको सिर्फ उसमें ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं और उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट लिखना है। ओके, सो ए में आपके पास दिया गया है 1 2 और 3 बॉक्सेस दिए गए हैं। 1 + 2 + 3 आपको मेरे साथ ही करना है, इज इक्वल्स टू डैश। ठीक है, ये दिया गया है आपको। अब यहां पे लिखा है 4 सर्कल्स, तो आप कितने करोगे? एक आपको ऑलरेडी बुक में ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इधर 4 सर्कल्स, इसका मतलब इधर 4 सर्कल्स। क्यों सेम? बिकॉज ऑब्जेक्ट हमें हर एक में सेम होंगे, ठीक है। तो आप 4 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करोगे। 1 दिया गया है तो यहाँ पे कितने ड्रॉ करोगी? 2 3 4, 1 2 3 4। यू विल ऑल्सो ड्रॉ द सेम 1 2 3 4। तो क्या हुआ? 4 + 4 8, 8 + 4 16। तो यहाँ पे कितने ड्रॉ करूंगी? सॉरी, 8 + 4 is 12। कितने ड्रॉ करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इज इक्वल्स टू 12 सर्कल्स। ये आपको बुक में ऑलरेडी दिया गया है, 12 सर्कल्स, ठीक है। अब ये क्या बना? हमारा एडिशन स्टेटमेंट बना। 4 सर्कल्स + 4 सर्कल्स + 4 सर्कल्स इज इक्वल्स टू 12 सर्कल्स। अब इसका मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा? ग्रुप एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो नीचे जो मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट लिखा है, ग्रुप्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो ग्रुप में 3 मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट कितने हैं हर एक में, 4, 4, 4। तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12। इजी। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट, राइट। वैसे ही इसमें बी, सेकेंड वन, देर आर ओनली 2, मैं दोनों आपके लिए कर रही हूं। 5 स्टार प्लस 5 स्टार्स, 2 ग्रुप्स है, 1 स्टार प्लस यहां पे लिखा है टोटल 5 स्टार्स प्लस डैश, अगेन यहां पे 5 स्टार्स इज इक्वल्स टू डैश, नीचे लिखा है 10 स्टार्स। आपको ऑलरेडी आंसर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओनली 1 स्टार ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे टोटल 5 है, तो हम और कितने ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ 4 मोर, राइट। 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। वैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 प्लस 5 इज हाउ मेनी, 10। तो यहाँ पे कितने करेंगे ड्रॉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 10 stars, ओके। सो अब इसका मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट क्या होगा, 1 ग्रुप एंड 1 ग्रुप, 2 ग्रुप्स मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, 5 एंड 5। तो 5 ऑब्जेक्ट्स हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट है, राइट। सो इसमें ये 2 क्वेश्चन से दोनों मैंने आपके लिए सॉल्व किए। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 120। अब उसमें बी में आपको 3 टाइम्स 5 ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट दिया गया है। जो हमने आगे एडिशन स्टेटमेंट किए थे, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके ऊपर से आपको एडिशन स्टेटमेंट फॉर्म करना है, ठीक है। वेरी इजी, जैसे आपने एडिशन से किया वैसे ही आपको मल्टीप्लीकेशन से भी करना है, ओके। दिस इज पेज नंबर 120। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट इज डन, सो आई एम नॉट डूइंग। सेकेंड इज 4 टाइम्स 7, सेकेंड इज 4 टाइम्स 7। इसका मतलब क्या है, 4 बार, टाइम्स का मीनिंग हुआ मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ग्रुप कितने हुए, 4 टाइम्स मतलब 4 ग्रुप्स हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको जो स्पेस दी गई है यहाँ पे, उसमें आप क्या लिखोगे, 1 ग्रुप प्लस अनदर ग्रुप प्लस अनदर ग्रुप प्लस अनदर ग्रुप, मतलब ये 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप एंड 4 ग्रुप इक्वल्स टू, ठीक है। पहले तो आप ग्रुप लिख दोगे, 4 टाइम्स मतलब 4 ग्रुप्स हो गए, बीच में एडिशन की साइन, बिकॉज एडिशन स्टेटमेंट लिखना है। और कितने ऑब्जेक्ट्स हर एक में, 7। 4 टाइम्स 7 मतलब 4 बार आपको 7 लिखना है। सो 7, 7, 7 एंड 7। सो व्हाट विल बी द आंसर, सी इफ यू आर नोइंग टेबल्स तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 28। पर अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो आपको 7 प्लस 7 14 प्लस 7 21 प्लस 7 28 ऐसे करना पड़ेगा। दैट इज वाई आई ऑलवेज टेल यू लर्न टेबल्स, प्रैक्टिस टेबल्स, राइट। तो आप क्या लिखोगे, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 28। आप ऐसे लिखोगे और उसके पास में सेम यही चीज आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। दिस इज द वे यू विल राइट। यहाँ पे आप अगर 28 नहीं लिखते तो चलेगा, यू कैन डायरेक्टली राइट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7, बिकॉज बुक में रिक्वायरमेंट नहीं दिए लिखने की, सो वी विल नॉट राइट, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इन द सेम इज 8 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2। इसका मतलब हुआ 8 टाइम्स आपको 2 ऐड करना है, राइट। सो 2 इज द ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स, 8। सो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कितने टाइम ऐड किया, 1 2 3 4,
अभी और 4 टाइम्स ऐड करेंगे, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एक ये आपका एडिशन स्टेटमेंट हुआ। 8 टाइम्स आपने 2 को ऐड किया, चेक करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यस, 8 टाइम्स मैंने 2 को ऐड किया। अब इसी का मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट क्या होगा, जो उसके पास वाली रो है उसमें लिखना है 8 मल्टीप्लाई बाय 2। 8 इज ग्रुप, 2 इज ऑब्जेक्ट। अब आप ही सोचो, ये करना इजी रहेगा कि आप 2 2 2 2 ऐड करो कि वो इजी रहेगा? Definitely 8 multiplied by 2, right? So that is why we say that multiplication makes our sums more easy, right? So 8 multiplied by 2 is the multiplication statement, and 2 add 2 8 times will give you addition statement, right? So children, with this we come to an end of addition and multiplication statement. आपको मैंने 2 सम्स बोर्ड पर कराए, रेस्ट आपको इसके एक्सरसाइज में से खुद करने हैं टेक्स्ट बुक में, राइट? नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड टॉपिक, दैट इज स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ठीक है, जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टडी किया, सेकेंड में भी स्टडी किया। नाउ इन स्किप काउंटिंग देयर इज वन वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। आप स्किप काउंटिंग के थ्रू मल्टीप्लीकेशन भी सीख सकते हो। कैसे आप सीखोगे? लेट मी शो यू ऑन द बोर्ड। सी, स्किप काउंटिंग के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बोला है 3 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 12। ये आपको पता है, राइट? 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा। अब यही चीज मैं स्किप काउंटिंग की हेल्प से आपको नंबर लाइन पे करके दिखाऊंगी कि स्किप काउंटिंग में आप कैसे कर सकते हो, राइट? नाउ दिस इज नंबर लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, मैंने 15 तक की नंबर लाइन ड्रॉ की है, राइट? नाउ 3 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 12, ये मुझे पता है, बट ये इस पे कैसे करूंगी? इसका मतलब है 3 टाइम्स में 4 के जंप्स लूंगी। इसका मतलब ग्रुप क्या है? 3। तो 3 टाइम्स में जंप लूंगी, पर जंप तो लूंगी वो मुझे पता है, पर कितने जंप लूंगी? 1 जंप, 2 जंप, 3 टाइम्स 4 मतलब 4 के 3 जंप्स लूंगी। एवरी टाइम स्किप कितने करूंगी? 4। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो फर्स्ट विल बी ऑन 4, ठीक है, 1 से 4 तक जाएगा। सेकेंड 0 से 4 तक जाएगा, मैंने भूल से इरेज किया वो। ओके, सेकेंड विल बी 4 के बाद 1, 2, 3 और ये 4 स्किप करो तो 8 आया। अगेन 4 स्किप करो 9, 10, 11, फोर्थ नंबर कौन सा आया? 12। सो ये क्या हुआ? 3 जंप्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 जंप्स। 1 जंप, ये 1 जंप था, ये सेकेंड जंप था और ये थर्ड जंप था। 3 टाइम्स मतलब 3 जंप्स। और हर एक जंप कितने के हुए? 4 के। 4 को मैंने स्किप काउंट किया। यहाँ पे 4, अगेन यहाँ पे 4, अगेन यहाँ पे 4। तो ये क्या मिला आंसर मुझे? 12। तो 3 4 12 मिला, राइट? सिमिलरली बुक में जो पिंक बॉक्स में है वही सम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यूज नंबर लाइन टू फाइंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू डैश। चलो अगेन आई विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है? अब आप सोचो कौन से नंबर से जंप लेना है, कितने नंबर्स के जंप लेना है। थिंक बाय योर सेल्फ टिल आई राइट द नंबर्स एंड देन डू इट विथ मी। चलो 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Now 5 multiply by 4 मतलब 5 टाइम्स 4 मुझे स्किप करने हैं। तो जंप्स टोटल कितने लूंगी? इट शुड बी क्लियर। 5 जंप्स लूंगी, यस। कितने कितने के लूंगी? गैप कितनी होनी चाहिए?
4 की, 4 की स्किप्स। ओके, सो पहले 1 2 3 एंड 4, तो फर्स्ट जंप 4 पर आएगा, सेकेंड 5 6 7 और फोर्थ नंबर इज 8। ये सेकेंड जंप हुआ, ये फर्स्ट जंप, ये सेकेंड जंप। नाउ अगेन थर्ड जंप 1 2 3 एंड 4, दिस इज थर्ड जंप। देन अगेन 1 2 3 एंड 4, this is fourth jump, and again 1 2 3 and 4, this is fifth jump। 5 jumps बोला था मैंने, 5 jumps, और कितने कितने के, 4 की स्किप काउंटिंग में। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 स्किप, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। तो क्या आंसर आया मुझे लास्ट में, 2 0 20। तो क्या मुझे यही आंसर यहाँ पे मिलेगा? यस, 5 4 20। So the same thing can be done with the help of a number line। आपने देखा यही सेम चीज नंबर लाइन पर भी हो रही है। Now children, based on this we will see the exercise। So exercise 1 2.2 में आपको ऑलरेडी नंबर लाइन ड्रॉ की गई है। आपको सॉरी, उसी में जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको भी आंसर्स देने हैं। So first is 6 multiply by 2। अब मैं यहां से ये इरेज कर देती हूँ। Students, now I'll solve one question for you in exercise 2.2 and rest 2 you will do it as homework। Okay, so first question is 6 multiply by 2। इसका मतलब 6 ग्रुप्स करेंगे हम, 6 जम्प्स लेंगे और कितने स्किप करेंगे, 2। So first जंप होगा 0 से 2, राइट। सेकेंड जंप स्किप करो, 2 2 में 2 4 6 8, सेकेंड विल बी 4, ये 1 ये 2, थर्ड विल बी 6, फोर्थ विल बी 8, फिफ्थ विल बी 10 और लास्ट जंप सिक्स्थ कौन सा जंप होगा, 12 पर। तो आंसर क्या आया, 12। तो 6 2 12 मिलते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट आई सॉल्व फॉर यू। सेकेंड एंड थर्ड आप खुद करोगे। और एक चीज, जब भी आप ये ले रहे हो आपको अंदर नंबर्स लिखने हैं ताकि आपको पता चले कि आपने स्किप काउंटिंग करने में कोई गलती नहीं की। रिमेम्बर, जो ग्रुप होता है उतने जम्प्स लेने हैं, ये चीज एक माइंड में स्टोर करें। और जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने आपको स्किप करने हैं। अ वेरी सिंपल वे टू लर्न। ओके, so with this children, today we have learned addition and multiplication statement and skip counting। Okay, now children, homework is exercise 2.1 question 2 half, exercise 2.2 question 1 half, एंड आपको जो मैंने वो बोला फर्स्ट पेज पर, पेज 118 पर आपको 5 सम सॉल्व करने हैं। पेज 118 सॉल्व। अगर आपके सब बाकी हैं तो सब करिए, नहीं तो 5 जो मैंने बोर्ड पर करा है उसके अलावा जो है वो आपको करने हैं। सो दिस इज द होमवर्क। एंड वन मोर थिंग, आपको पेज नंबर 121 पर टेबल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे बुक में इन लोगों ने टेबल्स कैसे दिए हैं, पहले ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं फिर ग्रुप लिखे हैं। सपोज ऑब्जेक्ट इज 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। हम लोग ऐसे टेबल्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग ग्रुप मल्टीप्लाई बाई ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप बुक रिफर करो तो आप ये नहीं समझना कि ये क्यों उल्टा हो गया है। नो, बुक में इन लोगों ने अलग तरीके से दिया है एंड वी आर लर्निंग टेबल्स बाय ग्रुप एंड ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट और ग्रुप दिया गया है, डिफरेंस कुछ नहीं होता, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, बट दैट द वे आई टॉट इज मोर इजी देन दिस वे। Okay, so children, with this we come to an end of our session and we'll be meeting back soon in our next session. Bye bye.